Now today we will start exercise 4.2. Our first question is find the roots of the following quadratic equation by factorization. हम factorization से roots find out करने वाले हैं इस exercise में. First question is find the roots of the following quadratic equations by factorization method. We will take only single example. हम केवल एक एग्जाम्पल लेंगे और आई थिंक मैं जानता हूं कि आप इसके बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाउ कैन यू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, क्लियर है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0. हमने ये एक एग्जाम्पल लिया अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0. ठीक है. बाय स्प्लिटिंग ऑफ 7x हम 7x का स्प्लिटिंग करेंगे. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 7x, इसका स्प्लिटिंग करेंगे. स्प्लिटिंग मीन्स यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं. इन स्प्लिटिंग में होता क्या है, मीन टर्म डिवाइड इन टू पार्ट. इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. कैसे, हाउ वी डिवाइड 7x इन टू पार्ट, कैसे करेंगे. सच दैट इस प्रकार होना चाहिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इज 7x, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ 7x. 7x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. बट ए नेसेसरी कंडीशन ऑल्सो हियर, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. इनके मल्टीप्लाई के इक्वल मल्टीप्लाई होना चाहिए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Multiply is, look at this, under root 2, 5 under 2, x, so x square, okay. 5 into 1 is 5, under 2 into 2 is 2 and x square, then 10x square. हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई में, 10x square चाहिए. And addition subtraction is 7x. So 7x divide in two parts such that multiply is 10, and you know very well 2 into 5 is 10 and 2 plus 5 is 7. So 7x divide in two parts in this type, under root 2x square plus 2x plus 5x plus 5 under root 2 is equal to 0. हमने डिवाइड कर दिया. देखें आप, 2 plus 5 7, 2 into 5 is 10. Okay, under 2 write in the form of also under root 2 multiply under root 2x plus 5x plus 5 under root 2 equal to 0. हम इस तरह से लिख सकते हैं because you know very well अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए. ये होता है. ओके, ये होता है. तो जब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इक्वल टू ए, देन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2. सो लुक एट दिस, विच इज द कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म. क्या कॉमन है, टेकिंग अंडर रूट 2 and x is common, under root 2x common, then here is only x and here is under root 2. Now in second to last के 2 में देखेंगे आप, 5 is common, then 5 common, so here is x plus under root 2. This is the common factor. So we can take common factor x plus 2 and remain is under root 2 x plus 5 is equal to 0. If यदि हम इसको इसके इक्वल रखें, if x plus under root 2 equal to 0, then we get x equal to minus under root 2. और हम इसे भी रख सकते हैं under 2x plus 5 equal to 0, then under root 2x equal to minus 5. So x equal to minus 5 upon under root 2.
This is x equal to minus under root minus 5 upon under root 2 and x equal to minus under root 2. So x equal to minus under root 2 and minus 5 upon under root 2. Therefore, we can write here minus under root 2 and minus 5 upon under 2 are the roots of quadratic equation. Therefore, minus under root 2 and minus 5 upon under root 2 are the roots of quadratic equation under root 2x square plus 7x plus 5 under root 2 equal to 0. ये आपके दो रूट्स आए हैं. Similarly, we can find the roots of all given equations in this type. Okay. In question number 2, given problem in example number 1 in NCERT book, page number 71 to 72. So do yourself. क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एग्जाम्पल 1 से लिया गया है और वो आपको आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है 10th की, उसमें पेज नंबर 71 टू 72 पे आपको मिल जाएगा. सो आप खुद करें उसे. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Let one number is 1 number be x. हमने मान लिया सपोज 1 number be x and sum up to number is 27. दो नंबर को सम करते हैं तो 27 होता है. If we have one number then we get easily second number by subtraction from the total. टोटल से हम उस 1 नंबर को निकाल करके सब्ट्रैक्ट करके सेकेंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स. डेफिनेटली सम अप टू नंबर इज 27, 1 is x, then other is 27 minus x. According to question, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 182. उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है 182 है. सो वी सेल प्रोडक्ट इच अदर. फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर एंड वी गेट 182 बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन गिवन इन क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 182. ओके. x multiplied 27 is 27x, x into minus x is minus x square, making RHS as 0. So 182 takes in LHS side, then 182 minus and here is 0. Okay. Arranging in descending order of power of x. x की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे. अब अरेंज करने में क्या सिंपल सी चीज़ है, माइनस एक्स स्क्वायर plus 27x minus 182 equal to 0. This is the quadratic equation. ये quadratic equation है. Also we can write here a small change in this equation. minus 1 multiply all the terms of equation. जब minus 1 से आप multiply करेंगे x square minus 27x plus 182 equal to 0 इस फॉर्म में हो जाएगा. अब क्या है, सॉल्व बाय स्प्लिटिंग मेथड. इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे आप. तो क्या करेंगे, इन फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 27x, इसका स्प्लिटिंग कर देंगे आप मिडिल टर्म का. जानते हैं हम एडिशन सब्ट्रैक्शन इज 27, मल्टीप्लाई इज 182x स्क्वायर, देन यू गेट इजीली माइनस 14x minus 13x plus 182 equal to 0 because
-14 माइनस 13x इज -27 यदि ऐड करते हैं तो, एंड -14 मल्टीप्लाई -13 इज +182 बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. 14 इंटू 13 इज 182 मल्टीप्लाई इज 182. अगेन टेकिंग द कॉमन फर्स्ट टू टर्म्स, this is x common, then we get x minus 14 minus 13 common, then x minus 14 is equal to 0. Common factor x minus 14, second is x minus 13 equal to 0. If x minus 14 equal to 0, okay, then x equal to 14, and if x minus 13 equal to 0, then x equal to 13. So x equal to 14 and x equal to 13, this is the required numbers. If first is 14, then second 27 minus 14 is 13. If suppose that you have taken 13 is first number, then second is 14. So our required two number is 14 and 13. Therefore, required two numbers are 14 and 13. This is 14 and 13 is the solution of our question. If you can take first number is 14, suppose that first number equal to 14. आपने यदि फर्स्ट को 14 लिया, देन सेकेंड क्या होगा? देन सेकेंड की आप बात करें तो 27 माइनस 14 इक्वल टू 13. और ऐसा भी ले सकते हैं आप, फर्स्ट नंबर इज 13, देन सेकेंड क्या होगा? 27 माइनस 13 इक्वल टू 14. कुल मिला के आंसर क्या आ रहे हैं हमारे पास? वही 13 एंड 14. सो फर्स्ट नंबर इज 13, देन सेकेंड इज 14. इफ फर्स्ट इज 14 देन सेकेंड इज 13. हमें सिर्फ ये देखना, कोई सा भी एक नंबर आप फर्स्ट ले लें, आंसर हमारे वही रहेंगे. यदि ऐसी कंडीशन हो तो आप समझ सकते हैं x इक्वल टू 14 एंड 13, ये जो आपके नंबर हैं x और 14 और 13, देयर फॉर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स, ये हमारे रिक्वायर्ड टू नंबर्स है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. Two consecutive integer, that means two consecutive number differ by 1. दो consecutive positive integers होते हैं तो उनके बीच का जो difference होता है वो 1 होता है. Then we can take let two consecutive integers be x and x plus 1 because differ by 1. So let the two consecutive positive integers be x and x plus 1. हमने माना कि दो कॉन्सिक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो x और x plus 1 है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है. स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटीजर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड इंटीजर एंड वी गेट 365. ये हमें 365 हुआ. नाउ
यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ अब आप ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। मैं इधर लिख देता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी होती है। ए मीन्स एक्स, बी मीन्स 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस using identity a means x square plus 2ab plus b square is equal to 365. 1x square is 2x square, ये 2 हो गया। 2 into x into 1 is 2x, this is 1, मेकिंग RHS 0। RHS को हमें क्या करना है, 0 बनाना है, क्योंकि हमें इक्वेशन में चेंज करना है। तो RHS इज 0, देन माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 364 इक्वल टू 0। ओके, डिवाइड बाय 2 ऑल द टर्म्स ऑफ इक्वेशन, या इक्वेशन डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड जब आप करेंगे देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, मीन टर्म डिवाइड इन 2 पार्ट, फिर इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 होना चाहिए और मल्टीप्लाई जो है आपका 182 होना चाहिए। तो हम ऐसे 2 नंबर्स यहाँ पर लेकर आएंगे जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे पास कितना हो, 1 हो। देखो या तो ऐड होगा वो या वो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनका दोनों में से क्या है, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 1 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आना चाहिए, माइनस 182 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर्स आपको फाइंड करना है। अब फाइंड करना है तो कई बार एक प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती है कि हाउ कैन वी फाइंड द 2 फैक्टर्स ऑफ मीन टर्म। ये जो मिडिल टर्म होता है इसके 2 फैक्टर कैसे निकालें, ये प्रॉब्लम हमारे साथ कई बार आ जाती है। तो मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई 182 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 182 को फैक्टर में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। अब आप देखें, आप इसको प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, बट यहाँ हम देखें 1 into 182 इज 182 डेफिनेटली होता है। हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और आप देखें 2 से फैक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इसे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ये भी हो गया। अब आप देखें क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, दिस इज नॉट डिवाइड बाय 3, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 से करके देखें आप, तो भी नहीं हो रहा है। अब आप जो भी आपको ये देखना कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, अपने को वहाँ चलना है। 4 से नहीं हुआ, 5 से देखें आप, 5 से हो नहीं रहा है, 6 से हो नहीं रहा है, 7 से देखें आप, 7 2 जा 14 एंड 7 6 जा 42, 7 से हो रहा है। 8 से करके देखें आप, जा नहीं रहा है, 9 से हो नहीं रहा है, 10 जाएगा नहीं, 11 से होगा नहीं, 12 से हो नहीं रहा है। अब बचा 13 से देखिए आप, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 13 से भी हुआ है। हमें क्या चाहिए, वहाँ पूछना हमें। इस तरह से हम और भी फैक्टर्स फाइंड जो भी होंगे मैं भी पॉसिबल वो निकाल सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करें हमें क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई ऑलरेडी 182 हियर, ये सबके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन इज 1, ये होना चाहिए। हाउ कैन वी फाइंड इज 1, कैसे निकाल सकते हैं 1? सो ओनली वन ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन फॉर 1। ये 1 के लिए ऑप्शन है, क्यों है, बिकॉज 14 माइनस 13 करते हैं तो डेफिनेटली 1 हो जाता है हमारे पास। अब ये प्रॉब्लम्स ये है कि हमें मल्टीप्लाई वाला जो है माइनस 182 चाहिए, तो डेफिनेटली ये हमें माइनस 182 चाहिए। दैट मीन्स एनी 1 नंबर विथ इन नेगेटिव साइन, नेगेटिव के साथ होना चाहिए।
विच नंबर इज नेगेटिव नंबर कौन सा होगा ये हमें देखना होगा। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। इफ मीन टर्म एंड दैट मीन्स दिस टर्म विथ इन दिस साइन, जो साइन इसके साथ होगा, ये प्लस होगा तो बिगर नंबर प्लस में रहेगा, ये माइनस होगा तो बिगर नंबर माइनस में रहेगा। हम इस साइन से इसको फाइंड करेंगे। दिस इज प्लस, सो 14 इज प्लस साइन एंड नेगेटिव साइन इन 13। 13 में नेगेटिव साइन रहेगा एंड वी गेट इजीली -182। देन आवर टू फैक्टर इज -13 एंड +14। So we can write here 14x minus 13x, ये ले सकते हैं। अब आप देखें, देखो इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। -13x + 14x भी लिखा जा सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो राइट हियर टू फैक्टर ऑफ x + 14x -13x -182 = 0। This is x common, so x + 14 -13 common, x + 14 = 0. Then x + 14 is common factor, and here is x - 13 = 0. If x + 14 = 0, then x = -14. And if x - 13 = 0, then x = 13. But required integer is positive. वो क्या है, आपको पॉजिटिव पूछा गया है कि आपको इंटीजर जो लेना है वो कौन सा लेना है, पॉजिटिव। सो -14 इज इनएडमिसिबल, हम इसलिए इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव है। हमसे पूछा गया क्या, पॉजिटिव। सो ये क्या रहेगा, इनएडमिसिबल रहेगा। तो हम लिख सकते हैं इनएडमिसिबल। हम ये -14 क्या रहेगा आपका, इनएडमिसिबल रहेगा, इसको जोड़ा नहीं जा सकता, इसको लिया नहीं जा सकता है। सो आवर आंसर इज 13। सो फर्स्ट नंबर इज 13। Therefore, the first consecutive integer positive integer is 13 लेंगे आप। 13 एंड सेकेंड 13 + 1 = 14। ये हमारा सेकेंड रहेगा। ओके, नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 cm, find other two sides. This is our question. Altitude means perpendicular. Altitude is 7 cm less than base. Hypotenuse is 13. जो राइट ट्राइंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है, और यूँ समझे कि बेस इज 7 मोर देन एल्टीट्यूड। सो लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, देन जब बेस उसका x होगा देन एल्टीट्यूड क्या, व्हाट इज एल्टीट्यूड, वो क्या होगा, देखें आप 7 सेंटीमीटर लेस देन
किससे? बेस से। एल्टीट्यूड इज, जो एल्टीट्यूड है वो क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस है। सो देन द altitude of right triangle be x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि हम बेस को x लेते हैं तो डेफिनेटली उसका जो एल्टीट्यूड होगा वो लेस देन 7 है, तो x माइनस 7 होगा। अब आप जानते हैं ये आपका राइट ट्राइंगल हो गया। सपोज दैट दिस इज अ राइट ट्राइंगल। ए बी एंड सी, ये हमने मान लिया। बेस इज x, सो x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड x माइनस 7 एंड हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर इज गिवन। This is right triangle. Now how can they find the value of x? x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? x is base, x minus 7 altitude and this is hypotenuse. So we can use Pythagoras theorem. Now हम यहाँ पर Pythagoras theorem यूज करने वाले हैं। In right triangle ABC by Pythagoras theorem। हम यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर रहे हैं। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? यू नो वेरी वेल। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, उसकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो हाइपोटेनियस इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मीन्स 13, AB is x minus 7 plus BC is x square। 169 identity A minus B whole square, A minus B whole square identity। write down here, मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। हमने प्लस वाली भी आपको बताई थी, अब ये माइनस वाली है। ए मीन्स एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2A एंड B, दिस इज B, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 169 no change as it is, and 1x square plus 1x square is 2x square minus 14x plus 49। ओके, बाय ट्रांसपोजिशन आर आप यूँ भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। RHS मेकिंग 0, then 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0। हम इस तरह से इसको, अब आप देखें 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 169, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो वी गेट क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा minus 14x and also this is minus 169 plus 49, then we get 120।
and bigger is negative sign, so 120 equal to 0. क्लियर सी बात है. ऑल द टर्म डिवाइड बाई 2, सम को हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें. दिस इज 120. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन हो गई. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 7x, फिर इसका आप स्प्लिटिंग करेंगे. एडिशन सब्ट्रैक्शन इज -7 मल्टीप्लाई -60. यू नो वेरी वेल हाउ कैन वी स्प्लिटिंग, कैसे कर सकते हैं. देन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, बिकॉज -12 प्लस 5 इज -7 एंड -12 मल्टीप्लाई 5 इज -60. यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं, इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर सी बात है. x is common, then x minus 12 plus 5, again x minus 12, you know x minus 12 is common, then other factor is x plus 5, 0. If x minus 12 equal to 0, then x equal to plus 12 and x plus 5 equal to 0, then x equal to minus 5. This is x equal to 5 minus 5 is inadmissible. Why? क्यों? x equal to minus 5 is inadmissible. Why? क्यों? Because we know that this is the length of base. Base की length होती है, and we know लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन में कभी भी लेंथ होती नहीं है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, इज इनएडमिसिबल. रीजन मैं आपको बता चुका हूं. व्हाई? बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव. लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. एक्स इक्वल टू माइनस को हम रिजेक्ट कर देते हैं. सो हमारे पास बचा क्या, 12. दिस इज द बेस. ये क्या रहेगा आपका, बेस रहेगा. हेंस द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज क्या, एल्टीट्यूड इज x minus 7 एंड x minus 7 मीन्स 12 minus 7 क्या होगा, 5 सेंटीमीटर. ये आपका एल्टीट्यूड होगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6. अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys, certain number of poultry articles. Okay, in place of poultry article also toys, any other also. In a day, एक दिन में कुछ प्रोडक्शन होता है पोल्ट्री आर्टिकल्स का, जो भी दिया गया है उनका. हाँ, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन ऑब्जर्व किया गया that the cost of production of each article was 3 more than the number of articles. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो क्या है, 3 more than twice the number of articles. 3 more than twice the number of article, मतलब उस दिन जो भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके दुगने से 3 अधिक ऐसा है कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल. ऐसा हमने ऑब्जर्व किया. प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यदि उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90 रुपीज़, उसका 90 रुपीज़ है, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल. तो आपको ये बताना है कि उस दिन टोटल कितने आर्टिकल्स बने और कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल क्या है, ये आपको 2 चीज़ें बताना है. ठीक है, क्लियर सी बात है. कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स हैं जिनको बनाया गया और किसी एक खास दिन का चयन किया गया और जिन्होंने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल है वो 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल बने उनके
ट्वाइस में 3 ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाती है। तो मान लेते हैं हम, लेट द नंबर ऑफ articles produced on that day be x। हमने मान लिया कि वो जो पर्टिकुलर डे जो बात कर रहे हैं, उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन पूछा गया, उस दिन जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे भी x आर्टिकल्स बने हैं। देन the cost of each article on that day be क्या? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे क्या कंडीशन है हमारी? जो भी आर्टिकल्स होते हैं, cost is 3 more than twice the number of article। 3 more than twice, किससे? twice से 3 more than the number of article is x, so twice of x and plus 3, this is the cost of each article। क्वेश्चन में कहा आपको, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे हमने माना कि उस दिन में x माना, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी आपकी? 3 more than twice the number of article produced on that day। जिस दिन बने उनके डबल से 3 ऐड कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाती है। एंड यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। टोटल कॉस्ट जब भी पूछी जाती है तो वहाँ क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा जाए आपको, टोटल cost of production on that day, इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मल्टीप्लाई क्या? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ओके। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, टोटल कॉस्ट इज गिवन 90 रुपीज। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज also already given in question 90, so in place of total cost of production on that day is 90। number of article be x, and cost of each article, this is cost of each article 2x plus 3 equal to 0। sorry, this is 90, x into 2x is 2x square plus 3x। by transposition 2x square plus 3x minus 90 equal to 0। this is the form of quadratic equation। now in this stage do yourself and also find the value of the number of articles produced on that day and also find the value of cost of each article। goodbye।